This video is not for everyone. This video is for every student who is already in a B school, जो किसी कॉलेज के हॉस्टल में बैठ के ये वीडियो देख रहा होगा, जो कैंपस में बैठ के ये वीडियो देख रहा होगा, बट स्टिल आस्किंग वन क्वेश्चन, इज दिस रियली वेयर आई वांट टू स्पेंड माय नेक्स्ट 2 years? Is this place or the brand I want to carry my entire life? Today morning, I received a message from one of my students. He had scored more than 99 percentile. He joined one of the newer IIMs, stayed there for some time, then decided to leave. His message was simple. Sir, I have left the IIM and returned home. I believe I deserve better. So I will attempt CAT once again with more work X. He is 23 years old, a general non-engineer with around 2 years of work X, and 8887 profile, and this time he scored 99.33 percentile. But despite such a strong percentile, he could not convert his target interview. मैं पहले क्लियर कर दूं, this video is not for views, not for controversies, not for clickbait. This video is for every student who is already in a B school but is still asking one question to own self or someone else or the mentors. Is this really where I want to spend my next 2 years? Is this place or the brand I want to carry my entire life? And this video is also for a student who have converted a college but are still feeling that maybe they can do better. Let's discuss with maturity, not emotion. Deserve better is subjective. मैं पहले इसमें बता दूं. First, we need to understand one very important thing. The statement, I deserve better, is completely subjective. A 99 percentile score does not automatically mean that one particular college is below you. ये मान लो कि अगर आप 99.99 लाते हो, इसका कहीं ये मतलब नहीं होता है कि कोई कॉलेज, आपका कोई बी स्कूल, आप बिलो हो गए, वैसा कुछ नहीं है. सो द परसेंटाइल इज अ डिफरेंट मैटर्स एंड द कॉलेज इज डिफरेंट मैटर, एंड हियर एस्पिरेशन इज ऑल्सो अ बिग फैक्टर जो समझना चाहिए. बट एट द सेम टाइम, ज्वाइनिंग अ कॉलेज डज नॉट मीन दैट यू शुड किल योर एम्बिशन, जिसकी मैं हमेशा बात करता हूँ, एस्पिरेशन, एम्बिशन. डिजर्व बेटर डज नॉट मीन गारंटीड बेटर. It only means that you believe you can work for better outcomes. A student from a newer IIMs, a baby IIMs, or even a relatively lesser known B schools, which is generally known as the Tier 6 B school, can build an outstanding career. Believe me, this happened. और मैंने अपने लाइफ में ये होते हुए देखा है. Your B school is important, but it is only a starting point. Your real goal is not just admission. Your real goal is a strong career, a better life. आपको एंड गोल को देखना होगा, समझना होगा. So the decision should not be come from ego, should not be come from the peer comparison or disappointment. डिसीजन जो आप लेते हो कि मुझे छोड़ना है, मुझे नेक्स्ट करना है, ये जस्ट आपका पीयर प्रेशर नहीं होना चाहिए, ईगो नहीं होना चाहिए. मैं हर एक साल बहुत सारे स्टूडेंट को गाइड करता हूँ जो बी स्कूल में हैं या बी स्कूल जो छोड़ने का प्लान कर रहे हैं. मैं ये वीडियो उनके लिए बना रहा हूँ. दिस इज अ वीडियो फॉर ऑल द पीपल जो ऐसा सोचते हैं. नाउ इफ अ स्टूडेंट इज इन द सिचुएशन, अगर एक स्टूडेंट इस सिचुएशन में होता है जो मेरी लर्निंग है, देर आर जनरली 3 पॉसिबल पाथ्स. पाथ 1 की बात करूं जो जनरली इस सिचुएशन में लोग लेते हैं. यू डिसाइड नॉट टू ज्वाइन द कॉलेज. आप स्ट्रेट फॉरवर्ड मना कर देते हो कि मैं कॉलेज ज्वाइन नहीं करूंगा. आई हैड दिस वन एंड मैंने इस कॉलेज को कन्वर्ट किया है, मुझे इसे ज्वाइन नहीं करना है. This can be a valid decision if you have a properly analyzed the college, the fees, the role, the placement and your long-term goals. अगर आप सब कुछ एनालाइज कर लेते हो तो बहुत अच्छी बात है कि मेरे को कॉल्स आया, मेरे पास ऑफर है, बट मैं ज्वाइन नहीं करूंगा. बट इफ यू आर नॉट ज्वाइनिंग, मैं सबको बोलता हूं कि तुम अगर इस कॉलेज को ज्वाइन नहीं करना चाहते हो, अगर तुम ज्वाइन नहीं करना चाहते हो, देन प्लीज डू नॉट सिट एट होम ओनली फॉर द कैट प्रिपरेशन. कि नहीं, मुझे ज्वाइन नहीं करना है, मैं इससे बेटर प्रिपेयर करता हूँ और मैं इसके लिए कैट फिर से तैयारी करूंगा घर पे बैठ के. जनरली आई डू नॉट सजेस्ट. कंटिन्यू योर जॉब, इंप्रूव योर प्रोफाइल, टेक अप मीनिंगफुल वर्क एक्स और इम्प्रूवमेंट इन समथिंग इन योर प्रोफाइल एंड प्रिपेयर अलॉन्ग विद दिस. अगर आप अपने प्रोफाइल को
इम्प्रूव करते हो, बिकॉज दिस इज नॉट अ जस्ट अ कैट, हमें इंटरव्यू भी देना होता है। इन इंटरव्यू अगर इंटरव्यू आपसे पूछता है कि आखिर ये गैप क्यों हुआ, आप जस्टिफाई कर सकते हो। बहुत बार ऐसा होता है कि लास्ट ईयर सर मैं 70% लाया, इस बार मैं 99.99% लाया, बिकॉज मैंने जॉब छोड़ी, मैंने अपने ऑप्शंस छोड़े। मुझे ये लगता था कि फॉर गेटिंग माई गोल डन, द कैट इज द वन ऑफ द मेन पॉइंट, तो मैंने उसको टाइम दिया। सो अगर आप कैट में इंप्रूव कर जाते हो 70% से 99 पॉइंट सम परसेंटाइल, दिस कुड बी वन वैलिड रीजन। बट पहले भी आपका 99% आया है, इस बार भी आपका 99% आया है, और आपने अपने प्रोफाइल में कुछ नहीं किया है, तो दिस इज नॉट गोइंग टू एड द वैल्यू, और ये एक मैनेजमेंट का ट्रेट नहीं होता है। सो द पाथ वन, अगर आप अपने प्रोफाइल में इंप्रूव कर सकते हो, डेफिनेटली लोग जो ऑफर आता है छोड़ते हैं, तो आई डू एक्सेप्ट। मैंने बहुत लोगों को सजेस्ट किया है और बहुत लोगों के साथ खरा भी रहा है जब ये करते हैं। तो सेकंड पाथ जो लोग चूज करते हैं, यू ज्वाइन द कॉलेज एंड अटेम्प्ट कैट अगेन। अरे ये क्या हो गया, मैं कॉलेज ज्वाइन करूंगा, कैट का अटेम्प्ट दूंगा, कैसे पॉसिबल है, क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। मेनी कैट स्टूडेंट डू दिस, दे कंटिन्यू देयर क्लासेस, पार्टिसिपेट इन द प्रोग्राम्स एंड प्रिपेयर फॉर द कैट इन पैरेलल, कि मैं कॉलेज ज्वाइन करता हूँ, वहाँ पे जो हो रहा है उसमें करता हूँ, और कैट की पैरेलल स्टडी करता हूँ। I have personally guided a student who moved from one B school to a better fit. I'm not saying the better B school, a better fit B school through this route. कॉलेज गए, वहाँ से कैट लिखा और दूसरे कॉलेज में गए। मैं कभी भी ये वर्ड यूज नहीं करता हूँ, दिस कॉलेज इज बेटर देन दिस कॉलेज, कॉलेज एक्स इज बेटर देन कॉलेज वाई, मैं ऐसा कंपेयर नहीं करता हूँ। इवन अगर कोई बोलता है कि दिस रैंकिंग में ये कॉलेज बहुत अच्छा है, स्टिल आई वॉन्ट से कि दिस कॉलेज इज बेटर देन दिस कॉलेज। माई वर्ड इज ऑलवेज दिस कॉलेज इज बेटर फिट दैन दिस कॉलेज। आपकी फिटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके लिए आपकी प्रोफाइल, एम्बिशन, एस्पिरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बट ये हमेशा रखो, दिस इज नॉट एन इजी टास्क। यू विल हैव टू पार्टिसिपेट इन द क्लासेस, असाइनमेंट, एग्जाम्स, कमिटी, समर इंटर्नशिप का प्रेशर होगा। अभी तो लोग सीवी बना रहे हैं, बहुत कुछ हो रहा है, कैट प्रिपरेशन एक साथ आसान नहीं होती है, बट लोग करते हैं। सो दिस पाथ रिक्वायर्स डिसिप्लिन, नॉट जस्ट अ डिजायर। अगर आप कॉलेज के साथ कंटिन्यू करना चाहते हो, तो यू नीड अ डिसिप्लिन, नॉट अ डिजायर। सिंस यू स्कोर 99 और 98 समथिंग, दोबारा कैट देने के लिए आपको बस अपने आप को रिफ्रेश करना होगा, मॉक्स में थोड़े से परफॉर्मेंस अच्छे करनी होगी, डिसिप्लिन लेके आना होगा। ओनली डिजायर नहीं होता है, लोग ऐसा करते हैं। फर्स्ट वन जो हमारा क्या होता है कि हम कॉलेज ज्वाइन नहीं करें। सेकंड वन क्या होता है, हम कॉलेज ज्वाइन करके कैट दे। पार्ट थ्री जो लिमिटेड लोग करते हैं, बट लोगों ने ऐसा किया है, यू लीव द कॉलेज एंड कैट अटेम्प्ट अगेन देते हो। अब कॉलेज ज्वाइन करते हो, वहां पे आपको लगता है कि कुछ बेटर फिट नहीं हुआ है, तो हम कॉलेज कॉल अगेन ज्वाइन करते हैं। बट यहाँ पे एक रिस्की ऑप्शंस होता है बहुत ही ज़्यादा। पहला, आप वहाँ के फीस को लूज कर सकते हो, और बहुत बार लोग करते हैं। सेकंड, सम स्टूडेंट लीव बिकॉज दे रियलाइज वेरी क्विकली। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कितनी जल्दी रियलाइज करते हैं कि मैं वहाँ अलाइन नहीं हो पाता हूँ। बट रिमेंबर वन थिंग, कि अगर आप जब वहाँ से छोड़ के आते हो, तो दोबारा कैट की प्रिपरेशन सिट आइडल होकर नहीं करना है। यू हैव टू इम्प्रूव योर प्रोफाइल, किसी जॉब को पकड़ लो, देन आप स्टार्ट करो, दिस इज गोइंग टू हेल्प यू। सो द फाइनल कन्वर्जन डिपेंड्स ऑन द योर एकेडमिक्स, वर्क एक्सपीरियंस, कैटेगरी, डाइवर्सिटी, सेक्शनल स्कोर्स, इंटरव्यू परफॉर्मेंस एंड द क्राइटेरिया ऑफ द ईच इंस्टीट्यूट आपको पता होने चाहिए। तो आप इसमें देखना होगा कि आप कितना टाइम डालते हो, आप कितना एफर्ट डाल रहे हो, आपकी रिस्क कितनी है, और आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कितना है। अगर आप इस सबको एनालाइज करते हो, देन यू कैन टेक द पार्ट वन, पार्ट टू, और इस टाइम पे तो लोग पार्ट थ्री चूज कर रहे हैं, और पार्ट टू और पार्ट थ्री के बीच में चूज कर रहे हैं। तो अगर आपके पास पार्ट टू और पार्ट थ्री का है, तो एनालाइज ऑल दीज थिंग्स, सारी चीज़ों को आप एनालाइज करो कि आखिर इन सारी चीज़ों में मैं कहाँ हूँ। कैट का कॉस्ट वुड बी 2300 टू 2600, जिसको दिया जा सकता है इवन अगर हम डिसिप्लिन में बहुत ज़्यादा नहीं हुए। कैट अच्छा होता है तो हम आगे जाएंगे, बट स्टिल वी आर गोइंग टू लूज द सम फी, हम उसमें भी बात करते हैं। नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड द फिनेंशियल रियलिटी ऑल्सो। नाउ कम्स एट वेरी प्रैक्टिकल पॉइंट्स, द फिनेंशियल कॉस्ट। If you join a B school and later you leave, you may lose the fees already paid for one or more terms. ऐसा होता है, इसको देख लेंगे। बट इन मेनी केसेस द अमाउंट कैन बी वेरी हाई। सम स्टूडेंट से टू मी, या मैं भी उनसे बोलता हूँ, इवन आई लूज 8 to 10 lakhs रुपीज, इज इट ओके? 8 से 10 लाख मैं लूज करता हूँ, इट इज ओके। इफ आई गेट माई ड्रीम बी स्कूल, आई कैन रिकवर दिस अमाउंट इन माई करियर। किसी के लिए 8 से 10 लाख का लूज करना
उस पर्सन के लिए एक बड़ी बात नहीं है, क्योंकि वो उस समय अफोर्ड कर सकता है। आई एम सेइंग वो उस समय अफोर्ड कर सकता है। फ्यूचर में तो सब कोई अफोर्ड कर सकते हैं। 10 लाख को अगर आप 10 साल में मंथली डिवाइड कर दो, तो कुछ भी नहीं होता है। लोगों को लगता है कि तो पीनट्स है। बट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम जब आप डिसाइड कर रहे हो कि आप उस समय अफोर्ड कर सकते हो, फॉर वन स्टूडेंट दिस लॉजिक में बी प्रैक्टिकल, बट फॉर अनदर स्टूडेंट दिस मे बी कंप्लीटली रॉन्ग। सो बिफोर यू डिसाइड, आस्क योरसेल्फ, कैन माई फैमिली absorb this loss? Can I should take this decision? Was the fee paid through education loan? Will the next attempt realistically improve enough? What is the real ROI of this decision? Am I making this decision because of my ambition or because of my temporary disappointment? Do not copy someone else task or the risk. आप ये सारे क्वेश्चन खुद से पूछो। किसी ने किया है, हमारे सीनियर ने किया है, तो हम ये भी करें। आप खुद से पूछो। The financial background, the profile, and the emotional strength may be completely different from person to person. So, personal decision in the same situation could be different from your decision in the same situation. Dreams are important, I do accept, but economics cannot be ignored. भूखे भजन न होई गोपाला, तो आपको अपनी इकोनॉमिक्स को भी देखनी चाहिए। ये नहीं कर सकते हैं। मैं आपसे बोलता हूं, आस्क योरसेल्फ द राइट क्वेश्चन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। Before leaving a college or before repeating CAT, ask yourself a few honest questions. Why I am disappointed? Why I am dissatisfied? Is the college genuinely misaligned with my goal, or I am simply comparing it with the someone else college? What exactly do I want for a better B school? आखिर मेरे लिए better B school क्या है? यहाँ मुझे वो लोग नहीं मिले, या मुझे वो प्रोफेशन नहीं मिले, या मुझे वो अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल रही है जो मैंने किया था। इज इट अ बेटर रोल, अ स्ट्रॉन्ग प्लेसमेंट, पीयर लर्निंग, अ स्पेसिफिक स्पेशलाइजेशन यू आर लुकिंग फॉर, और जस्ट द ब्रांड नेम? पूछो अपने आप से कि इसमें क्या डिसीजन है। व्हाट वेंट रॉन्ग द लास्ट टाइम क्या हुआ था जो मुझे ये बी स्कूल मिला है? वाज द इशू कैट स्कोर, सेक्शनल स्कोर, इंटरव्यू प्रिपरेशन, ऑल द प्रोफाइल, और कॉलेज सिलेक्शन स्ट्रेटेजी? इन सारे में वो क्या सारी चीजें हैं जो आप चेंज कर सकते हो? व्हाट विल यू चेंज दिस ईयर? विल आई गेन एडिशनल वर्क टेक्स? आप ले सकते हो। विल माई इंटरव्यू प्रिपरेशन इंप्रूव, या मैं अपने इंटरव्यू को इंप्रूव करूंगा? कैन आई प्रिपेयर विद द जॉब और विद कॉलेज? ये भी बहुत डिसीजन इंपॉर्टेंट है। मैं कर सकता हूँ, मतलब आपने जो लास्ट ईयर किया था उससे इस बार क्या चेंज करोगे या इंप्रूव करोगे खुद में? और दूसरा, अगर मैं खुद में इंप्रूव करता हूं तो क्या कॉलेज सिलेक्शन क्राइटेरिया में मुझे एडिशनल पॉइंट्स मिलते हैं या नहीं मिलते हैं? ये भी बहुत बड़ा क्वेश्चन है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं आपसे बोलना चाहता हूं, एम आई रेडी फॉर दिस इफ द नेक्स्ट रिजल्ट डज नॉट इंप्रूव? ये बहुत बड़ा चीज है कि मैं प्लान ए को, अगर मैं प्लान बी की तरफ जा रहा हूं, तो क्या मेरे पास प्लान सी है? इफ यू कैन नॉट एक्सेप्ट द पॉसिबिलिटी, डू नॉट टेक द रिस्क कैजुअली। A mature decision always begin with the honest self-assessment. मैं आपके साथ हमेशा खड़ा हूँ। मैं आपको हमेशा गाइड करूंगा, आपने जो भी डिसीजन लिया है। बट अगर आप डिसीजन लेना चाहते हो तो एक बार डेफिनेटली अपने मेंटोर से मुझसे बात कीजिए। क्यों लेना चाहते हैं? मैं आपको बोल सकता हूँ, मैंने अपने लाइफ में लोगों को IMK को मना करते हुए भी देखा है, और मैंने उनको बोला है कि IMK ज्वाइन मत करो। I am just taking one name for the example. Then the next year he went for the CFA, L1, L2, L3 complete किया in the 2 years and the WorkX gain किया. Right now he is in the ABC, one of the among the ABC. So K को ना बोलना और C को ज्वाइन करना क्या एक डिसीजन था? मैं इस डिसीजन में यस नो नहीं बोलूंगा। तो मैंने ही उसको बोला था कि K को छोड़ो, टारगेट करो ABC को, यू डिजर्व C. In this period of leaving K and joining the C, he improved. He gained the 2 year का WorkX, L1 वो पहले से था, L2 और L3 CFA क्लियर किया। सो कंप्लीट एक प्रोग्रेस पाथ उसमें दिखती है। अगर आप अभी कॉलेज में हो और कॉलेज छोड़ना चाहते हो, तो भी मैं आपसे बात करूंगा क्या रीजन है। क्या मुझे दिखता है कि यू हैव सम ग्रेजुअली इंप्रूविंग पाथ, तो डेफिनेटली मैं आपके साथ हूँ, आपके डिसीजन में साथ हूँ। मेरी गाइडेंस बहुत क्लियर होती है आपके साथ। नेवर ड्रॉप एवरीथिंग ओनली फॉर द कैट, जस्ट मुझे कैट के लिए ड्रॉप करना है, ऐसा नहीं है। इफ यू आर नॉट ज्वाइनिंग अ बी स्कूल, कंटिन्यू योर जॉब इफ पॉसिबल। अगर आप नहीं ज्वाइन करना चाहते हो, जैसे अभी जो मॉर्निंग में एक मैसेज जब मैं बात कर रहा था स्टार्टिंग में,
उसने बी स्कूल छोड़ा और अपने पुराने जॉब या नए जॉब को कंटिन्यू कर रहा है, इम्प्रूव कर रहा है प्रोफाइल पे, वर्क-एक्स उसमें आ जाएँगे, ऐड होंगी। दिस इज़ व्हाट एंड वो प्लान कर रहा है कि मैं डिसिप्लिन के साथ प्रिपेयर करूँ। इफ आई एम नॉट गेटिंग द मोर परसेंटाइल, आई एम गोइंग टू टारगेट द सेम परसेंटाइल जो लगता है कि अचीव किया जा सकता है। प्लस अगर इस साल कैट नहीं निकलता है, तो वो नेक्स्ट ईयर कैट के लिए भी रेडी है बिकॉज़ ही इज़ गोइंग टू ऐड वैल्यू इन द वर्क-एक्स। सो प्लान बी कॉलेज लीव करना, उसके साथ वो प्लान सी के लिए भी रेडी है। दैट्स व्हाई आई एम स्टैंडिंग विथ हर और हिम। तो जस्ट एक डिसीजन ले लेना कि पीयर प्रेशर या ईगो के बीच में हम नहीं बात करते हैं। इफ वी हैव अ प्लान, हम उसे एग्जीक्यूट करते हैं। मैंने हमेशा कहा है, ड्रीम को गेस नहीं किया जा सकता है ईगो के बेसिस पे। यू डिजायर बट डू यू डिजर्व, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो डिजायर एंड डिजर्व दोनों अलग चीज है। बट इफ यू डिजायर करते हो और इसके लिए फाइट करते हो, तो डेफिनेटली आप डिजर्व करते हो। अगर आप अपने आप को इम्प्रूव करते हो, तो डिजायर को हम डिजर्व में कन्वर्ट कर सकते हैं। यही तो मार्केटिंग है ना। वी नीड टू आइडेंटिफाई नीड चाहे तो लैटेंट हो या विजिबल हो, देन वी गो इनटू द कंपनी। नीड को वहां पे हम देते हैं, वी कम विद द प्रोडक्ट एंड सर्विस। इस नीड को वांट में कन्वर्ट करते हैं और वांट को हम एक्शन लेके सेल्स में कन्वर्ट करते हैं। सेम अगर आपकी डिजायर है, तो आपको अपने प्रोफाइल और बाकी चीज को इंप्रूव करना होगा विथ डिसिप्लिन। देन डिजायर को हम डिजर्व करते हैं। सो डिजायर विथ डिसिप्लिन बिकम्स द डिजर्व। अगर इसमें आप एक भी चीज मिस कर रहे हो, तो मैं आपके डिसीजन को क्रॉस चेक बहुत बार करूंगा। डू नॉट लीव एनी ऑफ द बी स्कूल बिकॉज वन बैड वीक, एक खराब सप्ताह गया, वन प्लेसमेंट र्यूमर एक आ गया, या किसी ने आपको डांट दिया, वन डिफिकल्ट क्लास हो गया, वन डिफिकल्ट सिचुएशन हो गया। एक कंपेयर को हम दूसरे कंपेयर से कर रहे थे। सर, मेरे कॉलेज का एक बंदा जो यूजी में मेरे साथ था, आज एक दूसरे कॉलेज में है। मैं इस कॉलेज में नहीं हूं, मैं ये डिजर्व नहीं करता हूं, मैं वो कॉलेज डिजर्व करता हूं। सो दूसरे को देख के हम बस डिसीजन नहीं लेंगे। गिव योर सेल्फ टाइम टू अंडरस्टैंड, देन शूट। आप देना चाहिए। अगर आप छोड़ते हो तो भी मैं आपके साथ हूं, आप डिसीजन लेना चाहते हो तो भी मैं आपके साथ हूं। Talk to seniors, study the actual rules and opportunities, understand the fee rules and the refund rules, discuss the decision with your family, your mentors, then decide. Leaving a B school is not automatically courageous. कि अरे मैंने तो छोड़ दिया, मैं तो मतलब मैचो हो गया, ऐसा नहीं होता है। Staying in B school is not automatically settling. दोनों अपने आप में है कि मैं कॉलेज छोड़ के मैचो नहीं बन रहे हो आप, या कॉलेज में कंटिन्यू करके आप ऑटोमेटिक सेटल नहीं हो रहे होगे। द राइट डिसीजन इज द वन दैट मैचेस योर लॉन्ग टर्म गोल्स एंड योर रियलिस्टिक प्लान। डिजर्व, डिसिप्लिन एंड डिजायर, ये तीनों जब एक साथ होते हैं तो हमारी लाइफ में अच्छा होता है। नाउ आई रेस्पेक्ट द एम्बिशन टू ऑल द स्टूडेंट हु सेंड दिस मैसेजेस, जो मुझको भेजते हैं, मुझसे बात करते हैं, एंड टू एवरी स्टूडेंट facing the same situation, I want to say this. I respect your ambition. Wanting something better is not wrong. कभी गलत नहीं है. But remember, one college name does not define your full potential. You can build an excellent career from your present institution, and you can also attempt CAT again if you genuinely believe another institution is essential for the path you want. तो मैं अभी बोल रहा हूँ जो कॉलेज में हैं, आप इसे सुनिए। अगर आपको लगता है कि आप इससे बेटर डिजर्व करते हो, या लगता है कि एक बार ट्राई करना चाहिए, डेफिनेटली विद डिसिप्लिन ऑफ द सम मॉक्स एंड द सम मेंटोरशिप, गो। एंड यू कैन ऑल्सो अटेम्प्ट कैट अगेन इफ यू जेन्युइनली बिलीव अनदर इंस्टीट्यूशन इज एसेंशियल फॉर द पाथ यू वांट। ट्राई करते हैं। बोथ चॉइसेस अपनी जगह पे वैलिड है, but the next decision should not be driven by the pain of the previous result. हम हमेशा सब कुछ पेन पे नहीं लेते हैं, एक वीक या 10 दिन के कॉलेज एनवायरनमेंट पे हम नहीं लेते। हम सोचते हैं, समझते हैं, देन लेते हैं। Every decision should be driven by a stronger plan for the future. Do not only say, I deserve better. मैं नहीं बोलता हूं इस बात को। Ask yourself, what am I going to be? If I am going to do the CAT again, what I am going to do differently to earn a better outcome. I deserve better is fine, but the different work to earn better outcome is again the important. So deserve, discipline, work differently and better,
एंड देन डिजायर। ठीक है, आप डिजर्व करते हो, देन बहुत अच्छी बात है। आप उसके लिए काम करने को तैयार हो, देन आप अब जो रियल डिजायर है वो डिजायर अलग है। इतने सारे डिसीजन, अब जो डिजायर है हम उस डिजायर को अगेन डिसिप्लिन के साथ करेंगे और डिजर्व करके रहेंगे। सो क्या आप डिफरेंटली कुछ करने को तैयार हो, या आप अपने प्रोफाइल को इंप्रूव कर रहे हो और प्लान बी के साथ छोड़ने के साथ प्लान सी आपका रेडी है? ऐसे सबसे सेफेस्ट होता है कि हम बी स्कूल के साथ कैट को प्रिपेयर करें। लूज करने को कुछ नहीं है, गेन करने को तो सारा जहां है। यहाँ पे लोग क्वेश्चन पूछते हैं, सर इंटरव्यू में मुझसे नहीं पूछेंगे, पहले कॉल तो आ जाए, इंटरव्यू की बात हम बाद में करेंगे। तो आर यू रेडी फॉर ऑल दीज थिंग्स? द आंसर मैटर्स मोर देन द स्टेटमेंट इटसेल्फ। बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं अगेन रिपीट कर दूं, दिस वीडियो इज नॉट फॉर एवरीवन, but this may be very important for one student who is sitting in the hostel room questioning whether this may med I am going to med the right decision or not। ये वीडियो सबके लिए नहीं है, बट एक पर्सन भी इस वीडियो को देख के अगर कुछ सीख जाता है, कुछ इंप्लीमेंट करता है, जो किसी कॉलेज के हॉस्टल में बैठ के ये वीडियो देख रहा होगा, जो कैंपस में बैठ के ये वीडियो देख रहा होगा, माई वर्क इज गोइंग टू बी अ सक्सेसफुल वर्क। मैं नहीं चाहता हूं इसमें थाउजेंड ऑफ व्यू जाए, मैं चाहता हूं बस कुछ लोग जो इस डिसीजन के बीच में फंसे हुए हों वो अपने डिसीजन को क्लैरिटी में बदल लें। दिस वीडियो इज फॉर वन स्टूडेंट हु हैज कन्वर्टेड अ कॉलेज बट स्टिल फील्स दैट दे कैन डू बेटर। माई मैसेज इज सिंपल, टेक एम्बिशन सीरियसली, टेक रिस्क सीरियसली, डू नॉट चूज फ्रॉम कंपेरिजन, डू नॉट क्विट कैजुअली, एंड डू नॉट स्टे ओनली बिकॉज यू आर अफ्रेड। मैं स्टे करने को भी नहीं बोल रहा हूं आपके कॉलेज में कि आप अफ्रेड हो। एक बार कैट दे के देखते हैं, कॉलेज में हो, कॉलेज छोड़ नहीं पाते हो, एक बार कैट दे के देखते हैं। आपकी फैमिली ये 10 लाख का लॉस भी बर्दाश्त नहीं कर सकती है, फिर भी एक बार कैट दे के देखते हैं। टू ऑल द बी स्कूल जो न्यू आप जिनको लगता है कि दे डिजर्व बेटर, 2500 2600 का लॉस है, इतना मैनेज हो सकता है। इफ वी गेट अ ड्रास्टिक चेंज, फिर से हम प्लान करेंगे हमें आगे क्या करना है। बी स्कूल इज अ माइलस्टोन, नॉट द डेस्टिनेशन। इसको भी याद रखो कि ये बी स्कूल मेरा डेस्टिनेशन नहीं है, मैंने हमेशा कहा है आर एंड गोल इज डिफरेंट। बी स्कूल एक माइलस्टोन है, एक पाथवे है जिससे हमें आगे बढ़ना है। योर बेस्ट एफर्ट जब भी आपका मिलता है, मेरा गाइडेंस या किसी और का गाइडेंस मिलता है एक साथ, देन वी क्रिएट और द वर्ल्ड क्रिएट द सुपर बेस्ट रिजल्ट। मैंने हमेशा आपसे कहा है, माई सेल्फ अमी है, मैं आपके साथ कैट के साथ भी हूं, कैट के टाइम पे भी हूं, कैट के बाद भी हूं। एंड एज ए बड़ा भाई मैंने अपने लाइफ में हमेशा बेस्ट देने की कोशिश की है। आप भी बेस्ट दीजिए, बेस्ट गाइडेंस लीजिए और अपना बेस्ट प्लान डिस्कस कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, थिंक कैट, थिंक एजुकेशन।